Hello everyone. Today we are going to discuss the topic that is meaning of verb and its examples. Right. So this thing we are going to cover this topic meaning of verb and its examples in the subject that is English 1 in the semester 1, that is semester first. Right. So let us start with the topic. It is meaning of verb and its examples. So verb is a word or a combination of words that indicates action or a state of being. So ये एक verb एक ऐसा क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन, एक ऐसा वर्ड होता है वर्ब जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हो जो एक एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग या स्टेट ऑफ बीइंग या किसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. अ वर्ब इज़ द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. जो एक वर्ब होता है एक सेंटेंस का पार्ट होता है दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म्स. वो हमें ये बता दे कि सब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है. वर्ब्स आर द हार्ट्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंस. जो वर्ब्स होते हैं वो इंग्लिश सेंटेंस का हार्ट होता है. राइट. वर्ब्स आर द हार्ट्स ऑफ द इंग्लिश सेंटेंस. सो लेट अस see all these things with the help of examples. Jacob walks in the morning. Right. So Jacob सुबह क्या कहते हैं वॉक करता है. ठीक है. तो ये यूजुअल एक्शन हो गया. माइक इज़ गोइंग टू स्कूल जैसे गोइंग टू. ठीक है. एल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक. सो एक नेगेटिव एक्शन है. ठीक है. जो एल्बर्ट है उसको चलना अच्छा नहीं लगता है. एना इज़ अ गुड गर्ल. एक स्टेट ऑफ बीइंग है. राइट. एना इज़ गुड गर्ल. राइट. बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या होते हैं. देयर आर 6 basic forms of verb. These forms are as follows. Right. Base form होता है children play in the field. इसको base form कहते हैं. Infinitive form होता है they tell them not to play. उन्होंने कहा it is tell them not to play. उनको कहो कि वो ना खेलें. past tense होता है they played football yesterday. तो इसमें क्या है they played उन्होंने खेला. उन्होंने कल फुटबॉल खेला था. राइट. played football yesterday. उन्होंने कल फुटबॉल खेला था. past participle आई हैव इटन अ बर्गर. मतलब कि मैं एक बर्गर खा चुका हूँ. प्रेजेंट पार्टिसिपल आई सॉ देम प्लेइंग विद हिम टुडे. मतलब आज मैंने उनको आई सॉ देम प्लेइंग विद हिम टुडे. मैंने उन सबको उसके साथ खेलते हुए देखा. ठीक है. जरंड. So it's this gerund is swimming is the best practice. So here the gerund is swimming. Right. So everything has been highlighted, right, for better understanding. So here the gerund it is swimming is the best exercise. So swimming is the gerund here. So let's move further. Different types of verbs: finite verbs, non-finite verbs, action verbs, liking verb, auxiliary verb, modal verb, finite verbs. Right. So these are the different types of verbs. Right. So earlier we had just seen the basic forms of verbs. Right. These are the basic forms of verbs. Right. And now we are going to discuss the basic types of verbs. So let us see what is finite verbs. Finite verbs are the actual verb which are called the roots of the sentence. So these are the ये वो ऐसे verbs होते हैं जो एक sentence का root होते हैं. It is a form of verb that is performed by or refer to a subject. या तो क्या एक इस तरह का form होता है या तो जो perform किया जाता है या एक subject को refer करता है. Right. That is performed by or refers to a subject. या perform by हो या एक subject को refer कर रहा हो. And uses one of the 12 forms of टेंस. और या जो वो है जो 12 तरह के टेंसेस हो उनमें से किसी एक को यूजेस वन ऑफ द 12 फॉर्म्स ऑफ टेंसेस एंड टेंस. राइट. it and uses one of the 12 forms of tense and changes according to the number. वो number के according change करता है. Right. और person or the person of the subject. Okay. So let us see all these things with the help of example. What do we mean by finite verbs? तो finite verbs का मतलब क्या है तो उसका example के with the help of example we can understand. Alex went to school. Alex school गया. Right. सब्जेक्ट यहाँ पे क्या एलेक्स परफॉर्म द एक्शन इन पास्ट. एलेक्स ने उस जो एक्शन को पास्ट में परफॉर्म किया. सो द इन्फॉर्मेशन इज एविडेंट ओनली बाय द वर्ब वेंट. सो इसमें वेंट के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि ये फाइनाइट क्या है. रॉबर्ट प्लेज हॉकी. राइट. ही इज़ प्लेइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया. तो यहाँ पे प्लेइंग है. राइट. सो ऑल द वर्ड्स हैव बीन हाईलाइटेड हेयर. राइट. सो हेयर इज़ ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स. जो ही वो है वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स जो प्लेयर्स में से सबसे बेस्ट है. हेयर द वर्ब इज़ डायरेक्टली रेफर्स टू द सब्जेक्ट. यहाँ पे जो इज़ है वो डायरेक्टली सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है. राइट. रेफर्स टू द सब्जेक्ट इटसेल्फ. राइट. लेट्स मूव फर्दर. एक्शन वर्ब्स. एक्शन वर्ब क्या होता है. एक्शन वर्ब्स इंडिकेट व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म. जो एक्शन वर्ब्स होता है एक्शन वर्ब इंडिकेट व्हाट द सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है एक सेंटेंस का वो क्या परफॉर्म कर रहा है. राइट. सो एक्शन वर्ब्स इंडिकेट व्हाट द सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म. जो एक जो सब्जेक्ट है उसका जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट जो परफॉर्म करता है. राइट.
So it says action verbs indicate what the subject of a sentence performs. Action verbs can make the listener reader feel emotional. जो action verb होता है वो जो listener reader होता है उसको emotional feel करा सकता है. See scenes it says see scenes more vividly and accurately. जो scenes जो कहते हैं वो काफ़ी vividly और accurately होते हैं, right? सो एक्शन वर्ब्स कैन बी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव. जो एक्शन वर्ब्स होते हैं वो ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं या इनट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, राइट. सो ऊपर जो एक्शन वर्ब है इट बेसिकली सेज एक्शन वर्ब्स इंडिकेट व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म्स. एक्शन वर्ब्स can make the listener reader feel emotional, see scenes more vividly and accurately, right? Action verbs can be transitive or intransitive. So what are transitive verbs? Transitive verbs must have a direct object. जो transitive verbs होते हैं उसमें एक direct object होना चाहिए, right? A transitive verb demands something someone to be acted upon. जो transitive verb होता है वो ये demand करते हैं something someone to be acted, जो या कोई चीज़ हो या किसी के ऊपर वो act करे, right? Someone the transitive verb demands something someone to be acted upon, right? So इसके examples है. We are going to understand all these things with the help of an example. I painted the car. मैंने कार को paint किया. The verb paint demands an object to be painted. जो verb paint है, जो एक verb है paint, वो ये demand करता है an object to be painted, एक किसी object को paint करने के लिए, right? The verb paint demands an object to be painted, right? तो एक जो ऑब्जेक्ट है वो पेंट होना चाहिए, राइट. जो पेंट वर्ब का ये मतलब है, वो ये डिमांड करते हैं एक जो ऑब्जेक्ट है वो पेंट होना चाहिए, टू बी पेंटेड, वो पेंट होना चाहिए, राइट. सो द वर्ब पेंट डिमांड्स एन ऑब्जेक्ट टू बी पेंटेड. लेट्स मूव फर्दर. शी इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर. सो हियर द वर्ब रीड आस्क द क्वेश्चन. जो यहाँ जो वर्ब है रीड वो एक क्वेश्चन कर रहा है. वॉट इज़ शी रीडिंग, वो क्या पढ़ रही है. द आंसर इज़ द ऑब्जेक्ट. सो जो इसमें जो आंसर है वो ऑब्जेक्ट है, राइट. इनट्रांजिटिव वर्ब डू नॉट एक्ट अपॉन एनीथिंग. जो इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो किसी चीज़ पे एक्ट नहीं करते हैं, राइट. इट्स इनट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट एक्ट अपॉन एनीथिंग. दे मे बी फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव. वो एक एडजेक्टिव के थ्रू फॉलो किए जा सकते हैं, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और अनदर पार्ट ऑफ स्पीच, राइट. एग्जाम्पल, शी स्माइल्ड, उसने स्माइल किया. द वर्ब स्माइल कैन नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट. जो उसमें वर्ब स्माइल है उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, सिंस द एक्शन ऑफ स्माइलिंग, क्योंकि इसमें एक्शन ऑफ स्माइलिंग जो है डज नॉट फॉल अपॉन एनीथिंग एनीवन. जो स्माइलिंग है, जो एक्शन ऑफ स्माइलिंग है डज नॉट फॉल अपॉन, वो किसी ऊपर फॉल नहीं करता है, राइट. ना तो किसी पे किसी चीज़ पे या किसी इंसान पे फॉल करता है, राइट. सो इट सेज सिंस द एक्शन ऑफ स्माइलिंग डज नॉट फॉल अपॉन एनीथिंग और एनीवन, राइट. आई वेक अप एट 6 AM. सो it says no object is needed for this verb, right. I wake up at 6 PM. So it says no object is needed for this verb, right. Let's move further. Linking verb. A linking verb adds detail. It says a linking verb adds details about the subject of a sentence. In its simplest form, it connects the subject and complement, right. So जो एक linking verb होता है वो लिंकिंग वर्ब ऐड डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. जो एक सब्जेक्ट का जो सेंटेंस का जो एक सब्जेक्ट होता है उसमें वो डिटेल्स ऐड करता है, राइट. इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट. ये एक सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है एंड कॉम्प्लीमेंट, उसको कॉम्प्लीमेंट भी करता है. दैट इज़ द वर्ड्स दैट फॉलो द लिंकिंग वर्ब, राइट. इट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन दैम इंस्टेड ऑफ शोइंग एक्शन. ये उनमें एक लिंक क्रिएट करता है, राइट. ओके. ऑफन what is on one it says often what is on each side of a linking verb is equivalent. The complement redefines or restates the subject, right. It says often what is on each side of linking verb is equivalent. The complement redefines. जो complement तो उसको redefine करता है और उस subject को restate करता है, right. जनरली लिंकिंग वर्ब्स आर कॉल्ड बी वर्ब्स. जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं एक्चुअली में वो बी वर्ब्स होते हैं विच आर एम, इज़, आर, वॉज, वर. तो उसमें जो बी वर्ब्स होते हैं जैसे एम, इज़, आर, वॉज, वर, इनको लिंकिंग वर्ब्स कहा जाता है. हाउएवर देयर आर सम अदर वर्ब्स विच कैन वर्क एज लिंकिंग वर्ब्स. तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं विच कैन वर्क एज लिंकिंग वर्ब, राइट. तो ओके, सो देयर आर सम अदर वर्ब्स विच कैन वर्क एज लिंकिंग वर्ब्स. सो दोज वर्ब्स आर act, feel, remain, appear, become, seem, smell, sound, grow, look, prove, stay, taste, turn, right.
सो सम वर्ब्स इन दिस लिस्ट कैन ऑल्सो बी एक्शन वर्ब्स. इनमें जो वर्ब्स हैं इनको एक्शन वर्ब्स भी कहा जा सकता है. टू फिगर आउट इफ़ दे आर लिंकिंग वर्ब्स, अगर वो लिंकिंग वर्ब्स हैं, यू शुड ट्राई रिप्लेसिंग दैम विद द फॉर्म्स ऑफ द बी वर्ब्स. अगर वो लिंकिंग वर्ब्स है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हमें उसको इससे रिप्लेस कर देना चाहिए. इससे यू शुड रिप्लेस यू शुड ट्राई रिप्लेसिंग दैम, मतलब आप उसको कोशिश करना चाहिए कि आप उसको रिप्लेस करें विद फॉर्म्स ऑफ द बी वर्ब्स, राइट. जो उसमें जो बी वर्ब्स होता है उनके साथ हमें क्या बोलते हैं, उसको रिप्लेस करने की कोशिश करना चाहिए, राइट. इफ़ द चेंज्ड सेंटेंस मेक्स सेंस दैट वर्ब इज़ अ लिंकिंग वर्ब. सो उसमें अगर कोई चेंज्ड सेंटेंस, अगर वो उसमें सेंस बना रहा होता है, ठीक है, सो दैट इज़ a linking verb, right. So let us see all these things, let us understand all these things with the help of the example. So this will help us to understand. She appears ready for the game. इसमें कि वो she appears ready for the game, right. She is ready for the game, मतलब वो दिख रही है कि वो ready है, तो इसका मतलब क्या है, she is ready for the game, right. So linking word is the food seemed delicious, right. तो ये food है वो delicious लगा. The food seemed delicious, वो स्वादिष्ट लगा. The food was delicious, right. You look happy, तो इसमें लगे you look happy, so you are happy, right. So ये linking verb है, right. So after this let us have a look at the auxiliary verb. Auxiliary verbs are also called helping verbs. जो auxiliary verbs होते हैं उनको helping verbs भी कहा जाता है, right. An auxiliary verb extends the main verb बाई हेल्पिंग टू शो टाइम. जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो एन ऑक्सिलरी वर्ब एक्सटेंड्स द मेन वर्ब. जो ऑक्सिलरी वर्ब हो वो मेन वर्ब को एक्सटेंड कर देता है बाई हेल्पिंग टू शो टाइम. उससे क्या दिखाते हुए, बाई शोइंग टाइम, टेंस एंड पॉसिबिलिटी, राइट. सो द ऑक्सिलरी वर्ब्स आर बी वर्ब्स, हैव एंड डू. जो इसमें जो वर्ब्स होते हैं वो बी वर्ब्स होते हैं, बी, हैव एंड डू, राइट. सो दे आर यूज्ड इन द कंटिन्यूस, प्रोग्रेसिव एंड परफेक्ट टेंसेस. ये जो होते हैं कंटिन्यूस, प्रोग्रेसिव और परफेक्ट टेंस में यूज़ होते हैं, राइट. सो लिंकिंग वर्ब्स वर्क एज मेन वर्ब्स. जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं जो हमने पीछे देखा, विच वी हैव सीन लाइक इन द अर्लियर पार्ट, दैट विच वी हैव सीन इन द अर्लियर पार्ट, दैट इज लिंकिंग वर्ब्स वर्क एज मेन वर्ब्स. जो लिंकिंग वर्ब्स हैं वो एक तरह की मेन वर्ब्स की तरह काम करते हैं सेंटेंस में. बट ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प मेन वर्ब्स. और जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो ये मेन वर्ब्स को हेल्प करते हैं, राइट. सो बट ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प मेन वर्ब्स. ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो मेन वर्ब्स को हेल्प करते हैं. डू इज़ एन ऑक्सिलरी वर्ब. जो ये डू है एक ऑक्सिलरी वर्ब है दैट इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन. ये क्वेश्चंस को पूछता है. टू एक्सप्रेस नेगेशन, टू प्रोवाइड एम्फेसिस. या तो नेगेशन जो नेगेशन को एक्सप्रेस करे या एम्फेसिस को क्या बोलते हैं वो एम्फेसिस प्रोवाइड करता है, ठीक है. एग्जाम्पल क्या है, एलेक्स इज़ गोइंग टू स्कूल. एलेक्स इज़ गोइंग टू स्कूल. एलेक्स स्कूल जा रहा है, ठीक है. दे आर वॉकिंग इन द पार्क. वो पार्क में वॉक कर रहे हैं. आई हैव सीन अ मूवी. मैंने एक मूवी देखी है. डू यू ड्रिंक टी. क्या आप चाय पीते हो. डोंट वेस्ट योर टाइम, राइट. प्लीज़ इसमें लिखा डोंट वेस्ट योर टाइम. आप अपना समय ना ख़राब करें. प्लीज़ डू सबमिट योर असाइनमेंट. आप अपने असाइनमेंट को सबमिट करें, right. And after this we have modal verbs. So what are the modal verbs? Modal verbs is a kind of an auxiliary verb. जो modal verb है वो एक तरीके का auxiliary verb ही होता है. It assists the main verb. ये main verb को assist करता है to indicate possibility, potentiality, एबिलिटी, परमिशन, एक्सपेक्टेशन एंड ऑब्लिगेशन. तो ये इन सब चीज़ों को इंडिकेट करता है. पॉसिबिलिटी, पोटेंशियलिटी, एबिलिटी, परमिशन, एक्सपेक्टेशन एंड ऑब्लिगेशन, राइट. सो द मॉडल वर्ब्स आर एंड सो इसमें जो मॉडल वर्ब्स किस तरीके के होते हैं. सो दीज आर कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, ऑट टू, शैल, शुड, विल, वुड. सो ये मॉडल वर्ब्स होते हैं. इनके एग्जाम्पल्स क्या है. आई मे वॉन्ट टू टॉक टू यू अगेन. तो मैं आपसे फिर से बात कर सकता हूँ. आई मे वॉन्ट टू टॉक टू यू अगेन. मैं आपसे फिर से बात कर सकता हूँ, राइट. इसका मतलब ये आई मे वॉन्ट टू टॉक टू यू अगेन, राइट. दे मस्ट प्ले देयर बेस्ट गेम टू विन. इसमें लिखा है दे मस्ट प्ले देयर बेस्ट गेम टू विन. तो उनको अपना अच्छा गेम खेलना चाहिए जीतने के लिए, राइट. शी शुड कॉल हिम. उसको कॉल करना चाहिए, बुलाना चाहिए.
I will go there, मैं वहाँ जाऊँगा, right? So these are the, these are the modal verbs, right? So with the help of these examples, we have understood what is the meaning of modal verbs and what are its types. So with the help of these examples, right, we have understood what is modal verbs, right? So with this, we have come to the end of this topic. Thank you very much.